लास्ट मोमेंट में मैंने अपने पेरेंट्स को बैठाया और समझाया, देखो मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ, आई जस्ट नीड यू टू गिव मी पॉजिटिविटी इन रिटर्न. अगर वो नहीं हो सकता अगर वो नहीं हो सकता, बी न्यूट्रल, चुप रहना, बिकॉज जो मैं करने वाला हूँ मैं करके रखूंगा. Hi everyone, this is the third episode of Chaotic Kanan, and today we have with us a musician, a traveler, Mr. Suvir. So, who is Suvir Singh? Hi, thank you for having me here. Yeah. Suvir is a dreamer who's always dreamed of being in a podcast. Okay. उसका दिमाग जैसे चलता है जैसे कि कोई इंटरव्यू चलती रहती है नॉन स्टॉप. So I'm very, very happy to be here sharing my experiences. I am a musician. I've taken interest in music. Okay. But music has led me into so many beautiful things like meeting amazing people, traveling, and spirituality, which is one of the things that I'd love to share today with you. I get it. Okay, so the best part about today is Suvir has just traveled 3 weeks across India, I must say. So, okay, so how was the experience? Oh my God, fantastic. तो अब मैं करता हूँ ये चीज विच इज कॉल्ड कार कैंपिंग. तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बेड बना दिया है, डिक्की में किचन डाल दिया है और फिर मैं मानता हूँ कि बस सड़क मेरा घर है और मैं बस ड्राइव करता रहता हूँ. एक्चुअली जब मैं छोटा था तो ड्राइविंग का बहुत शौक था. आई जस्ट वांटेड टू ग्रो अप एज क्विकली एज पॉसिबल टू फील दैट लाइफ. हर बॉय की इच्छा यही होती है. एंड व्हेन आई रीच्ड माय एडोलेसेंस देन आई सॉ दिस शो कॉल्ड टॉप गियर. Top Gear is a show about 3 fully grown men already retired who do crazy things like this. They take cars on long journeys, they do stunts, they do amazing things. Right. And one of the main feature of their show is that वो अंदर के बचपना को, अंदर के बॉय को जिंदा रखते हैं. वो आपके डॉल से दिख रहा है. Exactly. So let me please introduce myself and Mr. Gabru ji, who sits in my car all the time. Okay. I've had him for 20 years and he's my good luck charm. I get it. तो आपका रिलेशन म्यूजिक के साथ बहुत पुराना है, वो हमें पता है. एंड ट्रेवलिंग का कब से शुरू करा आपने? Actually, my parents, they've always been traveling. I myself have shifted so many times, more than 15-20 houses I've shifted. My dad's a fanatic traveler. वो एक जगह पर टिक नहीं सकते. Okay. It runs in my blood. For the sake of traveling or just work? Work and traveling especially. Work and traveling. Both. It's वो खून में ही है, तो work भी वैसा, travel भी वैसा. I get it. तो अभी जो आपने एक ट्रिप किया जिसके अराउंड ही सारा पॉडकास्ट है, तो उसका आइडिया कहाँ से आया एंड आपने कैसे मैनेज करा? Yes. तो the idea behind this trip was that I wanted to drive all the way from Amritsar to Coimbatore to a place called Dhyanalinga Temple, which is inside the Isha Foundation, which is being set up by this phenomenal energy called Sadhguruji, our Guruji. And I wanted to make this journey a bit special. So I circled around India. I started off from the left, how can I say, from the east side of India. That side I had never explored before. मुझे east वाला India बिल्कुल मैं कभी drive नहीं किया था वहाँ पर. तो I wanted to drive through the east part of India. I went to Delhi, Gurgaon, and then I entered into Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and then I started going down south because I wanted to first meet the Bay of Bengal, and then from there do Pondicherry to Coimbatore, and yes, I wanted to really explore Kerala as well. So this is the whole idea behind the trip was कि मैं कुछ खास करूँ सदगुरु जी के लिए. तो जैसे कि हमने अभी बात करी, आप सदगुरु से मिलके आए हैं, राइट? मिलकर नहीं आए, बट एटलीस्ट उनको देखकर आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कैसी थी? ओह माय गॉड, फेनोमेनल. फर्स्टली आई एम वेरी लकी कि मुझे सदगुरु जी दिख गए. नॉर्मली वो नहीं निकलते, वो सांप की तरह ही है. नहीं, he really enjoys being called that because उनके he was a snake charmer. And he grew up in his whole childhood with snakes all around. वो जब बच्चे थे तो वो snakes के साथ खेलते थे.
कोबरा के साथ खेलते थे और अपना पॉकेट मनी भी कोबरा के थ्रू ही वो निकालते थे, क्योंकि कई बारी उनके जंगलों में घरों के पास में कोबरा आ जाते थे घर पे, तो लोग डर जाते थे. बट ये यंग चैप सदगुरु जी वुड गो एंड देन रिमूव द कोबरा एंड देन वुड गेट अ लॉट ऑफ पॉकेट मनी फॉर दिस. सो सदगुरु जी एंड स्नेक्स हैव अ वेरी thick relationship. And another person who has a very thick relationship with snakes is our supreme Lord Shiva. Right. Who again, Dhyanalinga has been established for in the hindsight of Shiv ji. तो खास बात ये थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट लेता हूँ बिकॉज ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक में मैं अपने अंदर झांकता हूँ ताकि एक फिनोमिनल गाना निकाल पाऊँ. और उस स्कोप को बढ़ाने के लिए मैंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया. आई एम सो थैंकफुल कि हमारा कल्चर में इतना सारा नॉलेज भरा हुआ है. तो मैंने अपने आप को ज्यादा ग्रो करने के लिए अपने स्पिरिचुअल रास्ते का थोड़ा सा पेज इधर उधर पन्ने इधर उधर हिलाए हैं टू अंडरस्टैंड कि होता क्या स्पिरिचुअलिटी में, है क्या ये बातें कर रहे हैं. आई बिलोंग टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो मैं करूं क्या इसके साथ. So I fell in love with the concept of chakras. There is the Muladhara chakra, there is the Swadhisthadhara chakra, then you have energy portals all over your I get it. all over your body. There's energy circulating and they have been formalized. इनको सबको एक character दिया गया है. बिल्कुल. If you look at a rainbow, you'll see red, orange, yellow, green, blue. The whole thing has been systematically laid out. And our human race has spent so much time understanding all these phenomena that are happening around us ki this is a knowledge for us to gain. And what Guruji has done, Sadguruji has done, is that he has taken all these chakras, all these energies, and put it inside a linga and given us a real understanding of okay, ये है spiritual side आपकी, especially if you're looking at it from the Hindu point of view. So before going to that traveling part and जो भी आपने सोलो ट्रेवलिंग में सीखा है कार and जो भी आपके कार का सेटअप है जो हम डिस्कस करेंगे, मेरे को ये डिस्कस करना है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है first of all, right? And we will proceed with further questions like this only. Sure. And is spirituality, what do you mean by being spiritual, first of all? Spiritual is the modern way of looking at religion, I would say. Right. So that's so true. Yeah. So और if you want to make it more personal, जो मेरे एक्सपीरियंस में था कि है कि जो लोग स्वर्ग के लिए जी रहे हैं, who want to go to heaven, they are religious. But those who have come out of hell, they are spiritual. I get it. ये डायलॉग मेरे खास दोस्त एम्स ने पुट टुगेदर किया था. आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम कि ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर कि स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज ठीक है, नॉट जस्ट हेवन, इट्स हेल आल्सो. आई स्पिरिचुअली वुड see God as not just God but also on the other side. Yes, I would put positive and negative both put together. So spirituality is a very loose word which makes my universe, my real world, a million times bigger. In fact, infinite times bigger. तो जो मुझे अभी दिख रहा है, what all I can see through my eyes and whatever I can see, feel through my perception, or even through the knowledge that has been put together by the human race, right? I know, my gut tells me कि it's not enough. Exactly. And what can allow me to see further? One little सड़क है, छोटी सी पतली सी सड़क है, वो उसको बोलते हैं spirituality. मेरे लिए वो वही है. I guess for me spirituality is worshipping the reality. At least for me. Yes. कि आप ये नहीं कह रहे कि भगवान जी ने ये ऐसे क्यों किया, यही किया, यही भगवान जी ने किया, यही भगवान है. You have to just accept it and live through it, right? Yes, absolutely. And what do you feel about like अभी जो recent हमारे podcast गए हैं उसपे हमने बहुत बातें करी है energies की, right? Vibrations की. तो आपको क्या लगता है कि एक person की energies और vibrations उसके आसपास वाले लोगों पे कितना effect डालती हैं? Can I say that if I am positively energized or charged, so I will attract every positive person only?
or is there anything मतलब else your opinions on this? Yes, this is a very very beautiful topic. I think इसके अंदर psychology काफी mix हो जाता है. बिल्कुल. तो spirituality, science और हमारे बीच में एक छोटा सा हिल स्टेशन मैं बोल सकता हूँ, वो है साइकोलॉजी का. स्पिरिचुअलिटी और हमारी रियलिटी के बीच में एक छोटा सा है जगह जो साइंस ने थोड़ा सा अपनी एस्टैब्लिशमेंट की हुई है. ज्यादा लोग उसको इतना क्रेडिट भी नहीं देते जितना देनी चाहिए. राइट. बट वो साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं आपका सवाल कि ये है कि बाय द वे आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था. मेरा सवाल क्या था? ओके. जो आपने हमारी जो फॉर एग्जांपल अब मैं एज अ पर्सन हूँ, मैं अच्छे लोगों से मिल रही हूँ, मैं मतलब जिनकी मेरे साथ एनर्जी नहीं मैच हो रही मैं उनसे भी मिल रही हूँ. हाउ डू यू गेट टू नो दिस? अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं चार्ज्ड फील कर रही हूँ, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी पॉजिटिव थी. अगर मैं कहीं पे ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, वहां पे नेगेटिव थी. व्हाट आई मीन इज हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, most of them are because of the people we are surrounded with. Most of them are because जो अंदर के chaos है वो भी कहीं ना कहीं बाहर से ही इफेक्ट हो रहे हैं. तो what I mean is, can someone be so positive और so positively charged कि उसको हमेशा अच्छे ही लोग मिले? Yes. Yeah. I understand your question a lot clearer now. Yeah. सदगुरु जी, गुरु जी, साई बाबा जी, गुरु नानक जी, ओशो जी, yeah, they all have mentioned, and even we've been taught in our books also, कि the highest format for a human being to achieve is a state of bliss. Okay. Transcendence. Yeah. So there is a place where when you realize everything and you know everything, okay, you feel very relaxed. You feel absolutely in control. It is genuinely possible to be in that state of mind. Okay. And remain in that state of mind and enjoy it and interact, not just get but radiate, accumulate positivity, yeah, but start distributing I get it. positivity, and you will attract positive people. In fact, at that stage you will go beyond people duality interactions. Okay. You'll go beyond positive and negative. Okay. You'll go beyond that place where you don't even care about the consequence. That's what this book Bhagavad Gita has taught me. Okay. That you don't need to care about what happens, will it be positive or negative. You need to wholeheartedly give your 100% to that situation. और अगर आप ये करते जाओगे, it becomes a part of your nature. You start experiencing pure bliss. Okay, so coming to a much lower level, कि हम अभी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, कि जैसे कि आपने कहा कि अलोन खुद के साथ. अब मैं डेली लाइफ की अगर बात करूं, आपकी जो डेली लाइफ है, जो आपकी डेली इंटरेक्शंस हैं लोगों के साथ, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? स्पिरिचुअल वैसे एक होता है ना कि किससे मिले हैं तो उसका रीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग इज रिटन और नॉट रिटन on that point. Oh yeah, this is a fantastic topic कि क्या लिखा हुआ है कि नहीं. तो आप अपनी आंखों से बड़े जोर से लगा के सोचते हो कि दिखे कि कहाँ लिखा हुआ है. तो लोग हॉरोस्कोप्स पढ़ते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. आप यू गेट वेरी इन टच विद कि यार मुझे पता चल जाए पहले क्या होने वाला है. सो आई बिलीव करना ये जरूरी है, बट एट द सेम टाइम दूसरी साइड पर यू कैन लेट गो कंप्लीटली. You don't need to bother also. Okay. क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. Because each person is a journey. आप किसी को भी समझ नहीं पाओगे, खुद भी नहीं अपने आप को समझ पाओगे. तो आप एक लहर में आप जा रहे हो. हर चीज, हर एलिमेंट हर वक्त बदलता जा रहा है. nothing is constant. And that's what for me, in my private life, I try to just zone out from every person, zone out from people, that's and then sweet. Yeah, and go on maybe yes, go on a long journey, road trip around India, and then come back to do a podcast to help any person who wants to do the same thing. I get it. And तो road trip शुरू कैसे हुई? पहली बात तो किसी को नहीं बताना कि मैं जा रहा हूँ रोड ट्रिप पर. किसी को नहीं बताना. एम्स को पता था कि वो गोवा जा रहा है. उनको लास्ट मोमेंट में मैंने अपने पेरेंट्स को बैठाया और समझाया, देखो मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ
आई जस्ट नीड यू टू गिव मी पॉजिटिविटी इन रिटर्न। अगर वो नहीं हो सकता अगर वो नहीं हो सकता, बी न्यूट्रल, चुप रहना। बिकॉज जो मैं करने वाला हूँ मैं करके रखूंगा। तो उनको मीट करने के पहले एटलीस्ट 2 साल तक तो मेरे दिमाग में ये चलता गया कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो फिर उनको बिठाया और समझाया, देखो मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ कोयम्बतौर, और ईस्ट साइड से जाऊंगा, ईस्ट कोस्ट को देखूंगा और वेस्ट साइड से ऊपर आ जाऊंगा। मैंने प्लानिंग करके रख ली थी, चैट जीपीटी ने बहुत सहारा दिया मेरा, फुल ऑर्गेनाइज कर दिया। आई वॉज वेरी प्राउड कि मैंने जिस तारीख को बोला मैं निकलूंगा और जिस तारीख को आऊंगा एग्जैक्टली उसी दिन पर मैं निकला, उसी दिन पर पहुंचा। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए खौफनाक था ये ऑलमोस्ट, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल था, कुछ नहीं पता क्या होना, कुछ नहीं पता। एंड बाद में जुलूस ना निकले अपना ये देखो क्या पंगे उठा रहा है, तो अगर खत्म हो जाए उसके बाद में बताना इज मच मोर बेटर। बंदा इज वेरी करेजियस, बट जो फटी होती है पहले वो नहीं बता सकता कोई। क्या वो तो मैं आपकी मांगी कि डर होता है, पर जो श्योरिटी होती है ना, वो डर को ओवरकम कर रही होती है बिफोर यू स्टार्टेड। क्योंकि अगर वो ओवरकम ना करते आपने नहीं जाना था। एब्सोल्युटली। और किसी को ना बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं से एक शब्द भी आपकी डेलिकेट, आपकी सटलिटी इतनी कमजोरियां इतनी होती है ना उस टाइम पर, कि आप अगर एक बंदे ने गलत शब्द गलत टाइम पर यूज कर दिया तो इतना बड़ा काम ऐसे ही चुटकी में बंद हो जाता है, नहीं होगा। यही चीज थी। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करूं, जो कि मैं एडिट करने वाली हूँ, तो मैंने सबको मैंने बताया नहीं था किसी को कि ऐसे जाना है। तो आई जस्ट टोल्ड माय रूममेट, उसने मेरे को 5 बार कहा मत जा, 6वीं बार कहती तू जा सकती है। मैंने उसकी सिर्फ ये बात सुनी, उस बार उसने जो भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना। सो दैट इज द पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब जो आप रोड ट्रिप से अपने साथ लेके आए हो, बीट स्पिरिचुअल और द कार कैंपिंग और एनीथिंग, तो हम उस पे जाते हैं। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कार कैंपिंग। यस, कार कैंपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरावानिंग। ओके। कैरावानिंग एक थोड़ा सा ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाता है थॉट, लोगों को कैरावानिंग के बारे समझ जाए। कार कैंपिंग मैंने एक शब्द कॉइन किया है कि आपकी खुद की एवरीडे कार, आप उसको किसी ना किसी तरीके से एक बिस्तर उसके अंदर और एक किचन का सेटअप कर दो। किचन का सेटअप कर दो। किचन का सेटअप कर दो। तो यहाँ पर टाइमलेस अमृतसर में मैं जब लेकर आया था गाइडेड अंताक्षरी के लिए पॉपकॉर्न का सेटअप, गैस स्टोव था और एक सिलेंडर था, छोटा वाला था। हाँ, तो वो ही बन जाता है मेरा किचन अपनी गाड़ी में। मेरी गाड़ी है 2012 की मारुति सुजुकी वैगनआर, और इट स्टार्टेड लाइफ एज अ सीएनजी टैक्सी। उसके पीछे सीएनजी किट था, और जब मैं लिया तो उसको सीएनजी पर खूब चलाया, बट देन उस टाइम म्यूजिक भी चल रहा था, तो म्यूजिक ने मुझे अंदर से बोल दिया कि नहीं तुझे भागना पड़ेगा, बॉम्बे में नहीं रह सकता। वो गाड़ी मैंने बॉम्बे में खरीदी थी, और मेरे अंदर का जो था कीड़ा बोल सकते हैं उसको उसको निकलना था। तो सीएनजी किट निकाल दिया और धीरे करके काफी ऐसे ट्रिप्स किए। वेस्टर्न घाट्स को बहुत इन्वेस्टिगेट किया मैंने, रन ऑफ कच्छ चला गया, बॉम्बे से पंजाब में 4 बारी कर चुका हूँ गाड़ी में। मैंने महीने में जंगलों में रहा हूँ गाड़ी के साथ ही। जब कोरोना हो गया था तो जंगल कौन से? त्रिम्बकेश्वर। असली वाले जंगल। हाँ, और त्रिम्बकेश्वर एक ऐसी जगह ना, इतनी स्पिरिचुअल है वहां पर। साधु संत जो हम सुनते हैं ना, जो कुंभ के मेले में आते हैं, काफी वहां पर होते हैं। अघोरी? नहीं, अघोरी नहीं, अघोरी तो निकलते नहीं है बाहर। बट जो होते हैं, जो ऑरेंज में हमेशा होते हैं, ड्रेड्स होते हैं उनके। तो एक कहानी मैं बताता हूँ। जब कोरोना चल रहा था और पूरी दुनिया दहशत में थी, तो मेरा भी मन नहीं सेटल था, मुझे भी बॉम्बे नहीं रहना था, तो मैं भाग गया। मैं अपनी गाड़ी को लेकर मैं चला गया त्रिम्बकेश्वर। और वहां पर 1 महीना मैंने बिताया। उस टाइम मेरे पास कोई खाने पीने का इक्विपमेंट नहीं था। एक क्या बोलते, प्रेशर कुकर लेकर चल गया, वो बिल्कुल काला हो गया अभी। बट अपने सफर में मैं जा रहा था, सब पूरी लाइफ के बारे कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि ये दुनिया आ कहाँ गई है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ।
तब मुझे एक साधु जी दिखे जो सड़क पे चल रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे। आप मैंने ऐसी गालियां कभी सुनी नहीं है, बट उसने भगवान की तरफ ऐसे देखकर जो गालियां दे रहे थे, मैं सोचूं ये हो क्या रहा है, मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली तो मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लग गया। वो मुझे देखने लग गया और मुझे फिर अंदर डर लगा। मैं बोला मैं पता नहीं क्या किसी की स्पिरिचुअल पाथ में ना आ जाऊं। इमिजिएटली वो वीडियो डिलीट की, उनके सामने मैंने अपना मत्था टेका। मैं बोला आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती होगी। बट उस पूरे ट्रिप में मैं कॉन्टेम्पलेट करता गया कि भाई साधु इतनी जोर से गालियां क्यों, राइट। तो देन इट स्टार्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी, जो मैं बोल सकता हूँ इट्स नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल, इट्स वेरी अगली इफ इट वांट्स टू बी। टीच पीपल हाउ टू डू कार कैंपिंग। अगर आपकी कार कैंपिंग की इच्छा है, अगर आप करना चाहते हो कार कैंपिंग, तो मेरे से आप थोड़े टिप्स ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स वेरी रिस्की, आपकी गलती नहीं हो सकती, कोई आपसे आके एक्सीडेंट कर सकता है, यू आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड, आपके पास एक चाबी होती है गाड़ी की, वो आपकी पूरी जन्नत इमानत सब कुछ उसी के अंदर है। वो चाबी कैन नॉट बी लॉस्ट एट एनी कॉस्ट। सो यू इफ यू लूज, क्लमजी पीपल को ये डर तो रहता ही रहता है। इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन कि आप बहुत केयरफुल रहते हो अपनी चीजों के बारे में, आप बहुत अवेयर रहते हो क्या क्या कब करना है, कैसे करना है, मेरी चाबी कहाँ है, दरवाजा खुला है कि नहीं, कहाँ पार्क करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने फ्रंट सीट को रिक्लाइन करके एक बिस्तर बना दीजिए, डिक्की में सारा सामान निकाल के एक गैस स्टोव छोटा सा और एक गैस सिलेंडर छोटा सा रख लीजिए छुपाकर, और पानी के लिए आप एक 20 लीटर की बोतल रखिए। आपके वॉलेट के अंदर एक नोट जरूर रखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट करना है। आपकी गाड़ी के सामने प्लीज एक अपना मोबाइल फोन रख दीजिए, अपने सारे पेपर वर्क्स रेडी करके रखिए। ग्लव कंपार्टमेंट के साथ अपना सैनिटाइजर और अपनी जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उनको ठीक रखिए, और बी एज लाइट एज पॉसिबल। जितना कम सामान आप लेकर जा सकते हो वही ठीक है। और अगर स्पिरिचुअली बात की जाए तो कीप प्रेइंग, कीप होपिंग कि आपको अच्छी सड़क मिले, आपको कोई रुकावटें ना मिले, एंड कीप लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। जो अभी ऐसा हो रहा है, इंटरव्यू चल रही है, तो व्हेन यू आर ऑन द रोड एक इंटरव्यू चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है। हाँ, ये करूं या ये करूं, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो वो चलता रहता है। एंड इनकरेज इट, वो दिमाग में चलता रहे, इट बिकम्स अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। Okay, so you have spent like 3 weeks alone in a car. Okay, तो आपकी एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहा? एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, क्या क्या चीजें थी जो अनएक्सपेक्टेड हुई, आप नए लोगों से मिले। ओके, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि आप अकेले गए थे? हाँ नहीं, और आई प्रेफर बीइंग अलोन। ओके, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो फिर आपकी मर्जी चलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आई गेस तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है आप पे। यस, और कुछ नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका रिश्ता सड़क के साथ। राइट, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। आई थिंक पहली रात होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका रिदम उस टाइम चालू होता है। पहली रात मैं गुड़गांव से यूपी की तरफ निकला, और मैं यूपी में पहली बार जा रहा था, तो वहाँ का सीन, और छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा था, तो वहाँ का सीन आई हैड टू बी थोड़ा सा केयरफुल। पहली रात मैंने बस 15-16 घंटा ड्राइव करके अपने आप को पूरी तरह थका के एक जगह चुनी और वहां पर सो गया। जगह कौन सी चुनी, कैसी चुनी? तो एक ढाबा मिला रात के 9-10 बजे, वहां जाके प्यार से अंदर से एक कप दूध मंगवा लो और बोल दो भाई साहब आपके यहाँ ड्राइवर्स तो सोते होंगे, ट्रक ड्राइवर्स, मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने लिए आंख लगा रहा हूँ, आप अपनी आंख को रिफ्रेश करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तो मैं ग्रेट सो गया। वहां पर लगा आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए, बहुत टैलेंट होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आई वांट टू सी, सब दिख जाएगा आपको। बट मैंने वो करने में अभी, क्या आपको लगता है कि वो सच में दिखता है या सिर्फ माइंड की गेम है कि जो हम माइंड को समझा देते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। तो मैं आपसे काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, तो
I have gone through what you go through, कि you have defined what, आपको पता है कि reality ये है, राइट, ये ठीक है, ये नहीं है, हाँ, ये रियल है और ये रियल, ये इमेजिनरी हो सकता है, एब्सोल्युटली, हाँ, और मेरे लिए इमेजिनरी है, राइट। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो आपने ये मान लिया कि भगवान अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ओके, तो द थिंग इज कि आपने अच्छे बुरे की बात करी, तो मैं उनको भी रियलिटी में ही फिट करती हूँ, रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन सी और आइडेंटिफाई, राइट। तो जो रियल है वो रियल इसलिए है क्योंकि कुछ अनरियल है। हे भगवान, दोबारा बोलना। जो आपको रियल लगता है, जो आप बोलते हो ये रियल है, वो आपको रियल इसलिए लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ अनरियल है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये दायां है, ये दायां इसलिए है क्योंकि वो क्योंकि ये बायां है। ओके, मेरा मतलब ये कहने का मतलब है कि ये छोटा है, ये छोटा इसलिए है क्योंकि मैं बड़ा हूं। ये रिलेशनशिप बांध के रखता है आपको, राइट। तो जो आप सोचते हैं कि वो रियल है, जेन्युइनली रियल है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ और चीज अनरियल है, क्योंकि उसको अनरियल होने के लिए उसका एग्जिस्ट तो होना ही पड़ेगा, उसको एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी अनरियल फॉर यू टू बोलने के लिए कि हाँ भाई ये रियल है। अब यहाँ पे डिफरेंट माहौल बन चुका है, आई गेस। आई थिंक आप इसलिए रोड ट्रिप मैं इसलिए करता हूँ, म्यूजिक और ट्रैवल इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने आप को भूल जाऊं इसमें। जो मैंने सीखा अपने बचपन से वो सब लिमिट करके रखता है मुझे। इट ओनली गिव्स मी अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, आई डोंट सी द फुल पिक्चर। मैं जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकता हूँ, जितना अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, द मोर आई कैन सी द यूनिवर्स। ऑब्वियसली उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है वाओ ये तो मेरे भी बस के बाहर है, और बट आई एम ग्लैड टू बी हियर टू एक्सपीरियंस दैट। एब्सोल्युटली। आपने इस ट्रिप में सीखा क्या, इफ यू हैव पॉइंट्स? मैंने ये सीखा, और मेरे को हर रोड ट्रिप यही बताता है, मौका मिले चौका मारो। नेवर से नो टू एनीथिंग, आई गेस। अगर आपको अच्छा खासा बाथरूम दिखता है जाओ नहा लो नहा लो, यूज कर लो। डोंट नीड टू फील अशेम्ड और हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर आपके सामने पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो आपको थोड़ा इरिटेट करेगा, या आपसे थोड़ा पैसे लेने की कोशिश करता है, बिफोर यू कैन अंदर ही इंटरनली उसके लिए जो अपने लिए खौफ पैदा करने के पहले ही ट्रेन योर माइंड की उसको ब्लेसिंग्स देना चालू कर दो। एंड ट्रस्ट मी, आप जब भी ये करोगे उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, एंड दे विल टेल यू ठीक है सर आप जाइए। वर्बली और मेंटली, क्योंकि वो वर्बली हो ही जाएगा। आप अगर अपने वो जो है गंदगी को उसी टाइम कंट्रोल कर लोगे, राइट, वो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल टू द ऑफिसर, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही लोग हैं, उनको भी थोड़ा लालच इधर उधर होता है। तो बट जब वो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है तो उनका लालच उसी टाइम बंद हो जाता है। राइट, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दिस काइंड ऑफ, कि अगर सामने वाला भी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पोजीशन पे है, वो भी एट द एंड एक पर्सन है, वो तुम्हें गुस्से से बोल रहा है, उसको इतना कह दो कि हाँ आप सही कह रहे हो, हम समझ रहे हैं, बट दिस इज आवर सिचुएशन, लेट अस गो। एंड वो भले कुछ भी बोल रहे हो, आप उनकी बात पर गौर भी ना करोगे ना, और अंदर ये बोलते रहोगे यार आई हैव डन दिस। एग्जैक्टली, ये क्या बंदा है, क्या भगवान ने आपको क्या खूबसूरती से बनाया। अगर आप ये अंदर बोल रहे होते हो ना, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, वो खुद ही बोलेगा ठीक है सर आपके पेपर ठीक है आप जाइए। हाँ भाई, दूसरे को पकड़ते, बिकॉज उनका फ्रेम ऑफ माइंड इज टू कैच समवन हु इज नेगेटिव। राइट, एग्जैक्टली। एंड यू आर नॉट नेगेटिव एट दैट टाइम, तो आप उनकी वेवलेंथ में आते ही नहीं हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो एट दैट टाइम दे द एनर्जीज काइंड ऑफ डिटैच फ्रॉम देमसेल्व्स, जैसे कि चुंबक होता है। तो आप यहाँ, वो यहाँ पर। तो ये मैंने सीखा है। एक तो आप जस्ट बी, क्या बोलते हैं, ऑलवेज बी अलर्ट टू द मोमेंट, कि आप हमेशा सतर्क रहो। एग्जैक्टली, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रोड। आप, जब मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मेरे पीछे से कौन आ रहा है मेरे को पता होना चाहिए, मेरे आगे कौन है मुझे पता होना चाहिए, उसके आगे कौन है मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं अपनी बॉडी के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाऊँ।
वो पॉजिटिविटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आप उनको आराम से उनको आगे जाने देते हैं रादर देन कि आप उनको आड़े टेढ़े यू आर नेगेटिव तो आप उनको ब्लॉक करके रखते हैं, दे विल इरिटेट यू, यू विल ऑल्सो गेट इरिटेटेड, आपका ब्रेन थक जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव फॉर 15-16 आवर्स अ डे। अनदर थिंग आई लर्नड वाज स्टे लाइट। मेरी गाड़ी बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, और उसका पैरेलल ये बनता है कि मेरे सोच भी मैंने हल्के बनाए हैं। मुझे पता चल जाता है कि मैं कुछ भारी बात करने वाला हूँ, जो सोचने वाला हूँ, जो अपने मन के अंदर ही अगर कोई लड़ाई चालू होने वाली है तो बंद कर दो उसी टाइम। किसी के बारे अगर मैं किंतु परंतु करने लग जाता हूँ कि मेरे पास में उसने इतना मेरे से ज़्यादा पैसा कमा लिया या उसने मेरे को ये बोला था, इमीडिएटली स्टॉप। आई हैव टू बी लाइट। वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन के एनर्जी को यूज़ करती हैं, आपको भारी बना देती हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ cars are getting heavier and heavier and heavier, they're becoming bulkier and bulkier and bulkier। वो आपके बॉडी के ऊपर टोल लेता है। अगर आप थार जैसी गाड़ी को 15 घंटे चलाओगे, उसके जर्क्स, उसकी वाइब्रेशंस, उसका अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो कोई थार को थोड़े डाकू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, थोड़े नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। कोई भी थार देख लो, नॉर्मली देर ऑल ब्लैक। मेरी गाड़ी हल्की फुल्की लोअर मिडिल क्लास की वैगनआर, कोई शक नहीं करेगा इसमें कौन है शैतानी की, कोई देयर इज नो कि कोई इसके हाँ यार ये तो होगा, गरीब होगा, प्लीज जाने दो। तो उनको नहीं पता है कि बहुत ही लाजवाब जुगाड़िस्ट बैठा है अंदर, वो जुगाड़ करके इतने प्लेजर्स ले रहा है लाइफ की। बट इट इज टॉट मी टू बी लाइट। जब जर्क कम करती है तो जब आपके लाइट थॉट्स लाइट होते हैं, यू कैरी लेस लगेज, यू रिमेन लाइटर, यू सेव ऑन फ्यूल, यू जस्ट फील बेटर थ्रू आउट इट ऑल। ओके, सो आपने जो कहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, आपने एक तो सेल्फ कंट्रोल की बात करी है कि अपने थॉट्स वगैरह को कैसे कंट्रोल करना है, एंड टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट कि अगर कुछ करने निकल ही गए हो, अब 3 दिन का है, 3 हफ्तों का, यू हैव टू बी पॉजिटिव कि हो जाएगा। तो मैं आपको कभी लगा कि वापस आ जाऊँ? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं जब अपने शेड्यूल को देख रहा था, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर कर रहा था कि यार मैं एक्चुअली आई एम मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस, मैं टाइम पर हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, इनफैक्ट आई एम अहेड ऑफ प्लान। तो एक खूबसूरत सी चीज़ ये हो रही थी कि इस ट्रिप को करने के पहले मैं चला गया था भरमौर, और भरमौर यहाँ नॉर्थ की तरफ है, चंबा के राइट साइड पर। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। उस टाइम मैं ये वाली बुक साईं बाबा जी की पकड़ी हुई थी, जिसका नाम है श्री सत्य चरिता। तो ये बुक को मैं बस पकड़े पकड़े जा रहा था, थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरेक्ट कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि ऑल दी स्पिरिचुअल बुक्स ये मैं आई ट्राई नॉट माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको समझूँ ना, मैं इनको एक्सपीरियंस करूँ। तो इस बुक ने मुझे बताया कि इस बुक को टच कर, द ओम ऑफ ऑल थिंग्स। सो दीज टू हैड अ वेरी गुड कनेक्शन कि साईं बाबा जी, आई फेल्ट कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड गुरुज। मेरे अंदर के माइंड कंट्रोल को करने के लिए मुझे पता था कि आई कांट डू इट माई सेल्फ। कैसे बोल सकते हैं कि एक शराबी अपने आप को शराब के नशे से कैसे बाहर निकाल सकता है, ही नीड्स somebody to help him to come out of it, right? तो मैं अगर my mind is prone to overthinking, मैं counseling लेता हूँ, I have people helping me out to control my mind, because I need to control my mind if I have to make good songs, if I have to make honest to heart songs, तो I need help from these gurus। तो एंड पैरेलली मेरी मदर भी बहुत गुरुजी के साथ जुड़ गई हैं। यहाँ के गुरुजी हैं, उनकी अगर मैं तस्वीर बताऊंगा तभी पता चलेगा आधे लोगों को, बट हाफ ऑफ देम नो कि उनका एक मंदिर है, बड़ा मंदिर बोलते हैं, गुड़गांव में है। और मॉम बिकेम वेरी वेरी मच स्पिरिचुअल, और गुरुजी के माध्यम से मैंने इन सब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। पहले साल जब मैं अमृतसर में आया था तो मैंने सदगुरु को पकड़ा, उनके फ़िलॉसफी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की, उनका इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी किया, उनकी किताब भी पकड़ी और पढ़ ली, उनकी लाइफ स्टोरी समझ ली। उनको समझने के लिए मैंने फिर साईं बाबा जी को भी पकड़ा। मैं बोला आपकी लाइफ क्या है, आप क्या कर रहे हो? सारियों में कोई ना कोई पैरेलल्स दिखने लग गए। और जब मैं अपनी इस करंट रोड ट्रिप में जा रहा था,
इनिशियली मैंने शिरडी को इंक्लूड नहीं किया था अपने रोड ट्रिप में, एट द बैक ऑफ माई माइंड था, बट जहाँ जहाँ मैं जाता उनके इशारे मिलते जाते। जैसे मैं पहली बार बे ऑफ बंगाल के एक बीच पर मैं पहुंचा, रैंडमली किसी के बंदे के ढाबे में जाके एग राइस खा रहा हूँ, वो अपना फ़ोन खोल के बोलता है ये देखो मैं शिरडी होकर आया। मैं बोला अच्छा ठीक है। अगले दिन मैं एक ढाबे में पहुंचता हूँ, ऊपर देखता हूँ साईं बाबा जी। मैं थोड़ी देर और ड्राइव करता हूँ, बस के पीछे साईं बाबा जी। मैं जब तक मैंने अपने माइंड को नहीं बोला कि मैं शिरडी जाऊंगा, तब तक साईं बाबा जी मेरे पीछे लगे रहे। जिस दिन मैंने बोल दिया, बीच रास्ते जब मैं पौंडीचेरी पहुंचा, मैं बोला अभी तो जाना ही पड़ेगा। देन I stopped seeing Sai Baba anywhere. उनका point हो गया, and then on my way return trip I went to Shirdi. I try to avoid the highways. I try to avoid highways because they're expensive. उनके ऊपर trucks बहुत चल रहे होते हैं, और जो बहुत ही जो आजकल के सुपर फास्ट एक्सप्रेसवेज बने हैं उनमें तो कोई कल्चर देखने को मिलता है नहीं। इट्स जस्ट अ रोड और लैंडस्केप, कोई ढाबा नहीं, कोई लोग नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ इट्स जस्ट अ वेरी स्ट्रेट रोड। वो स्पीड के लिए अच्छे हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उतने एक्सपेंसिव है जितना मैं पेट्रोल पे करूँगा उतना ही मुझे लग जाता है। तो मैंने करना क्या चालू किया, आई स्टार्टेड अवॉइडिंग द हाईवेज। मैं गाँव के थ्रू निकलने लग गया। स्लो हो गया मेरा प्रोग्रेस, बट साउथ इंडिया की खासियत यही है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप साउथ इंडिया में जाते हो, अपनी खिड़की नीचे करते हो और स्मेल लेते हो उस जगह की, इट इज़ सो नाइस। जैसे कि रोज़ और एप्पल और लोटस को मिक्स कर दो, इन चीज़ों की फ्रेग्रेंस मिक्स कर दो। रोज़ एप्पल लोटस को मिक्स कर दो, ओके। हर बात पर आपको बस ये स्मेल आती जाएगी, आती। बड़ी उसकी इंट्रोडक्शन मेरे को बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अब यहाँ से। आप लेके बैठो। हाँ मेरे साथ बैठ रही है। I hope it's fine, yeah. Yeah, it's damn cute. Yeah. गबरू। Yeah, तो गबरू जब भी गाड़ी में नहीं होता ना, तो मतलब आप सोलो ट्रैवल नहीं करते, आप इसके साथ ट्रैवल करते हो? मैं इसके साथ ट्रैवल करता हूँ। तो इसने सारी जो मेरी ट्रिप्स है, इसने सारी ट्रिप्स देखी है। ये बॉय है या गर्ल है? You know, ये बुक में ओम ऑफ ऑल थिंग्स इसमें था कि जब एक टाइम था हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि जेंडर्स ही नहीं थे। जेंडर्स नहीं थे, ना मेल था ना फीमेल था। तो उनको नहीं ना पता होगा। हाँ। वो उनके पास नॉलेज कम होगी। तो इट इज बोथ, फॉर मी इट इज बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, तो it started life off as a representation of me, but now it has evolved into becoming a much more powerful concept. I get it. Yes. इसके जो पेंटिंग किए हुए है, ये एक छोटी सी लड़की आई थी मेरे घर पे, उसने फिर उसको लेकर पूरा पेंट कर दिया। हाँ, मैं चाहता था हाँ ना आई लव कि जो भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इट्स अ वे, जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये मेरा एक एक्सटेंशन है। तो मैं अपनी बॉडी के बाहर जाके इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, और जैसे यार क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट। गाड़ी का भी यही कॉन्सेप्ट रह गया ना हमारे साथ। आई गेट दैट पावर टू बिकम दैट कार। I become from this body, I go into another body. I get your point. And अगर आप spirituality और psychology के बारे में बात करना चाहते हो, तो I think it's a great point to further talk about how we are so attached to our bodies, but we are not our body. Okay. Yes, जो भी मैंने सारे गुरुजीज का सारा कंपाइल किया, उनके बीच में जो कॉमन थ्रेड लगा, गुरु नानक जी से लेकर ओशो से लेकर सदगुरु से लेकर गुरुजी से लेकर, दे ऑल आर सेइंग कि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट दिस, यू आर मच मोर देन दिस। तो वो उस थॉट के ऊपर मैं काफ़ी मेडिटेट करता हूँ वाइल ड्राइविंग। आई एम लाइक तो फिर मैं हो क्या सकता हूँ अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, आत्मा भी है जो वो बोलते हो, आप वो भी नहीं हो, तो आप हो क्या? जो चीज़ मैं अपने बारे में परसीव करती हूँ, मतलब जो मेरी परसेप्शन है खुद को लेके, वो कहीं ना कहीं बाहर भी डिपिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इनसिक्योरिटी है, मैं खुद को बोलती रहूँगी मेरे को बात नहीं करनी आती, वो चीज़ दिख जाएगी, राइट? एंड अब जैसे कि आपने इसके बारे में बात करी, यू कंसिडर दिस एज अ इंडिविजुअल
एंटिटी और समथिंग, तो आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग इट एज अ इंडिविजुअल एंटिटी जस्ट बिकॉज आपने वो वाइब्रेशंस इसमें ट्रांसफर करी है, राइट? एंड आई गेस सेम डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान दिखने में इतना अच्छा नहीं भी है ना, जो चीज़ मैंने अब तक नोट करी है, वो खुद को बोलता रहेगा ना मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मैं कितना क्यूट दिख रहा हूँ, वो सबके सामने जाके बोल देगा ना यार मैं कितना मस्त लगता हूँ, मैं ये वो, सब उसको वैसे ही देखना शुरू कर देंगे, राइट? यस यस. और एक्चुअल में अगर उसको कोई देखे तो वो चीज़ नहीं है, वो उसको खुद को भी पता है, वो सामने वाले को भी पता है, पर जो वाइब्रेशंस हम अपने लिए सेंड करते हैं ना, वही आई गेस बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं. यस. राइट? अब आपकी जो पर्सनालिटी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने बारे में जानते हो, राइट? एंड यू आर टेलिंग इट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, और एनीवन हु इज गोइंग टू मीट यू, वो भी आपको इसी तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हैं, राइट? एंड ऑल आई एम सेइंग इज कि जो चीज़ आप खुद को जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो वहाँ पे गैप आता है कि आप खुद को क्या मान रहे हो और क्या आप एक्चुअल में हो, राइट? सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस आई गेस. और सदगुरु जी की जो लाइफ है काफ़ी इंस्पायरिंग है मेरे लिए, बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड लाइफ बियॉन्ड डेथ. तो एक इंसिडेंट हुआ केरला में, जब बड़ी खूबसूरत, एक बात तो केरला बहुत सुंदर है. I think everybody should just go there and drive, avoid the highways, just go into the towns. इतना posh है, इतना वेल बैलेंस्ड है, जो ऐसा लगता है कि आप कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में हो. वहाँ पर उन्होंने उसी स्टाइल में सारी दुकानें बड़ी पॉश तरीके से बनाई हुई है. सड़कें बड़ी अच्छी हैं. मैं हमेशा वंडर करता था कि वेस्टर्न घाट्स में केरला कैसा फील करेगा. वेस्टर्न घाट्स 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग है. उसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि वो कैसे आए. बट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स एंड द सदर्न वेस्टर्न घाट्स, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में बनाना लीव्स और कोकोनट ट्रीज बहुत ज़्यादा है. अपने गट को ठीक रखने के लिए एक नया ट्रेंड शायद आ जाएगा, उसका नाम है प्रोबायोटिक्स. आ भी रहा है, क्योंकि सारे बोल रहे हैं टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ. गट हेल्थ में आपके शरीर के अंदर और जानवर जी रहे हैं. We call them bacteria. So we have a stomach inside our stomach. So we have to take yes. That's crazy. हाँ, वही है एक्चुअली. दैट्स द रियलिटी. अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम चिकन मीट कुछ नहीं खा पाएंगे. उनकी वजह से जो भी हम फील करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर मैं म्यूजिक बजा के आई एम फीलिंग गुड, तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर रियलिटी साइंटिफिकली सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, तब जाके आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट माई सेल्फ. बट उनको बनाने वाला बैक्टीरिया. So you need to take more bacteria. You need to eat more fermented foods, जो साउथ इंडिया करता है. उनके सारे इडली डोसा सारे बिल्कुल उनका बहुत लाइट होता है. Absolutely. तो I would say कि अपने आप को इस ट्रिप ने के साथ रादर मैं बोलूँगा इस ट्रिप में मैं ये चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ और अपने थॉट्स को और हल्का कर दूँ. तो पेरेंट्स के साथ काफ़ी साइकोलॉजी जुड़ी है. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अपकर्मा. आई थिंक जो बोलते हैं ना कि आप बचपन में बहुत इनोसेंट होते हो वगैरह, बहुत वनरेबल होते हो, तो आपके बचपन में जो हो जाता है वो आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट करता है. तो मैं पिछले 2 साल से अपने पेरेंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ कि अपने बॉडी के अंदर जो गिल्ट पैदा हुई है या डिसअपॉइंटमेंट्स पैदा हुई हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए. तो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की तरह बन जाओगे. और अगर आप अपने पेरेंट्स को हेट करते हो तो यू विल बिकम अ हेटर. आप नफरत लाओगे दुनिया में, विच इज़ आपकी दुनिया आपके लिए बुरा है, दूसरों के लिए भी बुरा है. तो प्यार कैसे करना है अपने डैड को, मॉम को तो कर ऑब्वियसली आई एम अ मदर्स बॉय, बट डैड को कैसे प्यार करना है वो सीखना पड़ता है. ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, राइट? तो आप कह रहे हो कि फिलहाल के लिए आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, राइट? यू आर मैनेजिंग इट टू द बेस्ट लेवल यू कैन. दैट डजंट मीन कि वो वॉइड कंप्लीट हो चुका है, आई गेस. नो नॉट एट ऑल ना. और ये अच्छी बात है, क्योंकि वो वॉइड जब कोई मिलेगा भी वो भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा. मैं उस अल्टीमेट वर्ड की बात ही नहीं कर रही. इट्स जस्ट द अदर वर्ड जो कि एक सामने वाला पर्सन कंप्लीट करता है एज अ पर्सन इस एज में.
एज में. इस एज में, राइट. आई थिंक आपकी एज और मेरी एज में काफ़ी फ़र्क है. या तो मैं ऑलरेडी प्यार से गुजर चुका हूँ. मुझे पता है कि क्या फीलिंग्स आती है, क्यों होता है. तो इट्स नॉट एज एक्साइटिंग फॉर मी. नाउ आई कैन सी इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन अ वेकेशन. Oh, I get it. Yeah, I it's not get a it. it's not a vacation for me. It's मतलब कि पता चल गया अभी उसके अंदर. I would love to have a relationship just to experience the difference of जितना मैंने अपने knowledge accumulate किया है कि how do you talk, आप communication कैसे करते हो. क्योंकि जब मैं पहली बार love में आया मुझे कोई idea नहीं love क्या है. One of the एक thing जो मैं thanks for talking about this क्योंकि मैं love को define करना चाहता था. जी. I wanted to tell you मुझे भी पूछना था, बस टॉपिक नहीं आया यार. what I feel love is, और I think ये पिछले 3-4 दिन से manifest हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि I feel love is not a destination, it's a process. Of course. और इस process का से 4 हिस्से हैं. इस प्रोसेस के 4 हिस्से हैं. जो मैं शब्द यूज़ करने वाला वो इंग्लिश में है. आई एम सॉरी बट वो इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड. बट वो भी नहीं है, बस उसके पास है, आजू बाजू में है. ट्रस्ट, होप, फेथ और बिलीफ. ट्रस्ट, होप, फेथ एंड बिलीफ. ओके. जब ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, जब 4 पहिए अलाइन हो जाते हैं, फिर वो प्यार की गाड़ी आगे बढ़ती है. ओके. अदरवाइज देयर इज नो लव. इट्स नॉन स्टॉप प्रोसेस है. आपको उसके लिए उन गाड़ी को चलाने के लिए आपको 4 चाहिए पहिए. तो ये 4 दीज आर द 4 थिंग्स दैट हेल्प मी गेट लव. तो अगर ये नॉलेज मेरे पास आ गई है, आई वुड लाइक टू सी इट वर्किंग. अगर कोई आया लाइफ में, आई लाइक टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, देन आई वुड लव टू सी कि ये मेरी थॉट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है, एंड आई एम इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इट, लर्निंग फ्रॉम इट, कम्युनिकेटिंग वेल और गेटिंग व्हाट आई वांट एंड गिविंग व्हाट आई कैन गिव. ओके. तो आपने जैसे कि हमारी जितनी भी पहले बात हुई है और जो अब हो रही है, आपके अंदर एक फियर है, राइट? तो आर यू डूइंग एनीथिंग टू ओवरकम दैट फियर? माई फियर इज वॉट इज गाइडिंग मी. मैं म्यूजिक से बहुत डरता था, मैंने म्यूजिक को ही चुना. डरते क्यों थे? क्यों मुझे समझ नहीं आती. अच्छा. आई डोंट अंडरस्टैंड इट. मुझे लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. म्यूजिक इज वेरी डिफिकल्ट टू बिगिन विद. तो मुझे नहीं पता कि म्यूजिक में हो क्या रहा है. मुझे नहीं पता मुझे गाने क्यों पसंद है, बट पसंद है. मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द आर्ट्स म्यूजिक इज़ द टफेस्ट. मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, आई कैन मेक पेंटिंग्स, मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, बट जब गाने बनाने की बारी आती है, जब उनको परसीव करने का होता है, नोट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली परसीव करना होता है, मुझे नहीं पता. मैं नहीं समझ सकता. तो वो मुझे उससे ही वही चीज़ करनी है जिससे मुझे डर है. स्पिरिचुअलिटी बहुत डरावनी है, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ. तो मैंने क्या किया है. डरावनी है, चैलेंजिंग है? डरावनी है, खौफनाक इज़ व्हाट आई वांट टू से. कि ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि मुझे पता है कि दिस इज़ सो मच मोर. और ये जो है 4 चीज़ें जो मैंने बोली ना आपको, प्यार की, लव, होप, ट्रस्ट, होप, फेथ और बिलीफ, इनका जैसे लेफ्ट है तो राइट है, इनका भी यिन है तो यान है. तो इन्हीं बिलीफ, होप, ट्रस्ट, फेथ का काउंटर पार्ट है, द ऑपोजिट साइड, विच इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, टेम्पटेशन, कंपल्शन और रेजिस्टेंस. ओके. हिंदी में नहीं मैं बता कर. आई गेट इट. बट ये ही मेरे गुरु बन गए. मैं अपने आप से पूछता हूँ कहाँ है ये सारी चीज़ें. मुझे रेजिस्टेंस किस चीज़ से आ रही है, मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ. कैन आई चेंज इट. मैं प्रोक्रेस्टिनेट किस बात पर कर रहा हूँ, कैन आई चेंज इट. मेरे को टेम्पटेशन किस बात से हो रही है, कैन आई चेंज इट. और मुझे रेजिस्टेंस किस चीज़ में महसूस हो रही है, कैन आई चेंज इट. क्योंकि मैं अपने माइंड पर नहीं ट्रस्ट कर सकता. वो बहुत ही शैतान है. उसने वांट्स टू फाइंड द शॉर्टकट, बट आई वांट द लॉन्ग कट. ओके, आई गेट इट. एंड जैसे कि आपने कहा, तो ब्लैक मैजिक में थोड़ा आप विश्वास जो कहते हैं. एब्सोल्युटली नो. आई मीन एक्सपीरियंस, जैसे कि अब आपने कहा कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव. आई थिंक ब्लैक मैजिक मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन हो सकता है. डिप्रेशन और सुसाइड, ड्रग एडिक्शन, माई जनरेशन, सो सॉरी टू से, बट पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, दिस इज ब्लैक मैजिक.
और मैं इनको भी बुरा नहीं मान सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके बिना आपको रास्ता नहीं मिलेगा. So use this part of the journey. Use this, control my mind, Yeah. and see some other higher formats of pleasure, which will help me, be a better person. ओके तो जस्ट एक रैंडम थॉट है कि आई मेट अ पर्सन तो ही इज सो मच लाइक इनटू दिस थिंग्स एंड ही टोल्ड मी दैट कि यू डोंट एक्चुअली रिक्वायर समवन. तो ओशो को बहुत फॉलो करते हैं एंड ही इज इनटू दिस इंस्टेंट प्लेजर्स, राइट, ओशो के नाम पे, ठीक है, क्योंकि वो भी ऐसे बोलते हैं एंड एट देन ही सेड एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सम गुड फ्रेंड्स. सो इट वाज good flings. गुड फ्रेंड्स एंड फ्लिंग्स. Yeah, in a sense. तो मतलब आप कुछ टेम्पररी प्लेजर्स कंप्लीट करके जस्ट बिकॉज किसी ने कह नहीं दिया, आपने खुद मान लिया क्योंकि आपको चाहिए था एंड यू सेड कि अच्छा उन्होंने कहा हुआ दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. एट देन तुम खुद इनकम्प्लीट हो बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट यू आर जस्ट स्टक इन दोस टेम्पररी प्लेजर्स एंड नेमिंग इट कि अच्छा उन्होंने कहा था. वो भी तो करते थे. आई थिंक ये होता है सबके साथ. लॉट ऑफ पीपल स्मोक अप वीड और गांजा जस्ट बिकॉज शिवजी स्मोक्स अप गांजा. बट वो हर पर्सन, दिमाग ऐसी ही चीज़ है जो उसको करना है उसने करना है. बिल्कुल. और हम जो एक्सपीरियंस करके ये बता सकते हैं उसके बारे में कि लेट इट हैपन. ये गंदगी के बिना आपको अच्छाई नहीं दिखने वाली. यू हैव टू गो थ्रू इट. यू हैव टू फील हार्ट पेन. यू हैव टू गो थ्रू सफरिंग. यू हैव टू डाई इफ यू वांट टू टेक बर्थ अगेन. तो यू हैव टू, ये हम बोल नहीं सकते कि वो गलत काम कर रहे हैं. वो हमारी, वी जस्ट हैव टू ब्रॉडन अपनी खुद की विजन की. वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. उस गांजे के अंदर भी होगा कुछ भगवान की एलिमेंट जो हम नहीं समझ सकते. यही है मेरे अंदर का बचपना को थोड़ा मैच्योर करने की. यही है मेरी जिद की वो मान ले कि उसकी ही दुनिया नहीं है सब कुछ. इट्स नॉट जो मैं सोचता हूँ वो नहीं है सब कुछ. मेरी समझ के बाहर दुनिया चालू होती है. एंड सुबीर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? मैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी हो सकता है. ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है. मैं मानता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू बी नॉलेजेबल कि आपके फीलिंग्स और इमोशंस का फ़र्क क्या है और आपके जिस्म के हाउ डू यू रिएक्ट. आपके इस वाले पार्ट ऑफ योर हेड कंट्रोल्स योर थॉट्स, योर हार्ट कंट्रोल्स योर फीलिंग्स, योर इमोशंस कम फ्रॉम योर गट. Scientifically talking, your gut produces the hormones, your brain replicates those hormones. तो आपका शरीर लिटरली, मैंने जितना समझा है अपनी पढ़ाई से, ये वाला इज द, ये जो दिमाग जो हमने दिया गया इतना बड़ा जो हो गया, इट इज द कार्बन कॉपी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द टमी. जो हमारा पेट करता है ना, अपना दिमाग उसको रिप्लिकेट करता है जस्ट इन केस कि ये पागल ना हो जाए. क्योंकि अगर ये पागल हो गया, हमारी मेन जो थिंकिंग है, जो मूलाधारा, स्वादिष्ट धारा, विच इज़ फूड रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड एंड सेक्सुअल थॉट्स, वो पेट से ओरिजिनेट होती हैं. ऑल आर इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ से है. ज़्यादातर हम अपने गट से सोचते हैं. फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिमाग लगाया गया. दिस हेड, दिस ग्रे मैटर इज इसलिए ताकि आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें. तो हाउ डू आई कंट्रोल इट? मेडिटेशन, एफर्मेशंस, कॉन्स्टेंटली बीइंग अवेयर, कॉन्स्टेंटली बीइंग अलर्ट. कॉन्स्टेंटली मुझे होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, इसके ऊपर गाने बना रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को जान पाऊँ. सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत हाईली प्रायोरिटाइज करता हूँ. अगर मैं अपने आप को जानता हूँ तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा. और मैं हूँ क्या? मैं वही हूँ जो सारे इंसान मेरे आजू बाजू में, इनको प्यार दूंगा, कैसे प्यार दूंगा, कितना कंपैशन दूंगा, उसी पर मेरी ग्रोथ निर्भर है. आई एम अ सोशल एनिमल, जैसे आपने बोला. आई विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. ऐसे मैं कंट्रोल करता हूँ थ्रू नॉलेज और थ्रू गाइडेंस. Okay, tell me one reason, just one reason that you will never had a road trip again. Never had one reason. Never have a road trip again. If I could fly. If you want a more logical answer. I actually don't, but you can continue. नहीं, यही है अभी. It was a good answer. मैं उड़ के जाता सारी जगह, बट मैं जाना बंद ना करता. I would still, yeah, road trips
क्यों ना करता है, आई एम सॉरी बट करना पड़ेगा बार बार। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस, इट मेक्स मी थिंक। कुछ हो जाए लाइफ में ऐसा, वाइफ आ जाए, घर पे बैठा रहूंगा। नहीं फिर तो उसको लेकर ही आई थिंक रिलेशनशिप तभी बनेगी उसके साथ, अगर मैं उसको अपना दिखाऊंगा ये वाला हिस्सा कि आई वुड लव, और वो मानेगी कि सिलेंडर और कुकर कार में साथ लेके जाना है। या वो एक होती है शिवलरस रोमांटिक साइड इज रेडी। आई थिंक रोड ट्रिप्स तब बंद हो जाएंगे जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, मेरी इनलाइटनमेंट हो जाएगी। मुझे अपने शरीर के अंदर बैठे बैठे मैं अलग लोकास में जा सकता, आई थिंक यही है मेरी, इट्स अ वेरी बिग वन। तो इसमें कोई पता नहीं अगर वाइफ हो सकती है कि नहीं, बट इट बी अ नाइस रोमांटिक टॉपिक। अगर मैं जैसे बोलते हैं ना गुफा में बैठ के अकेले, नहीं मे बी एक मेरी वाइफ है वो भी गुफा में बैठी है मेरे साथ, हम दोनों स्पिरिचुअली मेडिटेट कर रहे हैं और हम इस ब्रह्मांड से कोई और दूसरे ब्रह्मांड में जा चले गए, हमें गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। मे बी दैट वुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट। आई गेट इट। चलो